Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, in our last lecture, we discussed differentiation of inverse trigonometric functions. Today, we have one more important topic from differentiation, that is differentiation of a function in parametric form, or in other words, differentiation of parametric functions. Differentiation of parametric functions. Until now, we have differentiate variable y with respect to variable x. So far, जो differentiation हमने की, चाहे वो explicit function की differentiation थी, चाहे वो implicit function की differentiation थी, चाहे वो inverse trigonometric function की differentiation थी, in all these cases, what we find dy by dx, that is differentiation of variable y with respect to variable x. But what can we do when the variable is y and x, they are expressed in terms of third variable, say t. That is, अगर हमारे पास ऐसा केस होगा कि जो ये variable x और y, they are dependent on another variable, say variable t. That is, you have x equal to g of t, y is equal to f of t. Here x depends on variable t, here y depends on variable t, and here this t is called, this third variable is called parameter. And x comma y, they are known as parametric functions. यानी इस टाइप की जो फंक्शंस होती है उनको हम क्या कहते हैं? पैरामीट्रिक फंक्शन. Explicit function is always of the form y equal to f of x. Implicit function is always of the form f of x y equal to 0. और जो पैरामीट्रिक फंक्शन होती है, that is of the form x equal to g of t and y equal to f of t. Here t is known as parameter and these functions are known as parametric functions. Okay dear? जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन होगी कि x और y they are dependent on another variable, say t, आपको डिफरेंशिएट करना है, आपको निकालना है, you have to obtain dy by dx. How we can obtain dy by dx? हम कैसे निकालेंगे इस केस में, पैरामीट्रिक फॉर्म में हम कैसे निकालेंगे dy by dx? So what we will do, there are two types. There are two ways of obtaining dy by dx. हमारे पास दो तरीके हैं जिससे हम obtain करेंगे dy by dx. एक तरीका ये है, एक सिचुएशन ये है कि हम क्या करेंगे, we will determine a relationship between x and y by eliminating the parameter t. जो ये फंक्शन दी हुई है पैरामीट्रिक फॉर्म में, उसमें हम क्या करेंगे, हम एक रिलेशन ऑब्टेन करेंगे, हम एक रिलेशन डिराइव करेंगे x और y के दरमियान. उस रिलेशन में क्या होगा, उस रिलेशन में जो पैरामीटर t होगा उसको हम एलिमिनेट करेंगे. यानी उसमें यानी कि जो रिलेशनशिप x और y के दरमियान होगी, दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ t. उसमें हम t को एलिमिनेट करेंगे और उसके बाद जब t एलिमिनेट होगा, फिर जो रिलेशनशिप रह जाएगी, दैट विल ओनली इन्वॉल्व x एंड y, और उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू x. ये एक तरीका, ये एक वे. बट it is not always possible or convenient to eliminate the parameter t. यानी हमारे पास ऐसी भी पैरामीट्रिक फंक्शंस होंगी जिनमें पैरामीटर t को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं होगा या बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होगा. तो उस टाइम हम क्या करेंगे, उस टाइम हम कैसे निकालेंगे dy by dx? उसके लिए जो प्रोसेस है वो ये है कि x is a function of t, so we will first find dx by dt. यानी हम इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, so you will get dx by dt, that is g dash t. ओके, इसी तरह यहां पे भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, that is dy by dt
इट इज इक्वल टू एफ ऑफ टी की जो डिफरेंशिएशन होगी दैट विल बी एफ डैश टी। ओके डियर, उसके बाद हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, हमें ऑब्टेन करना है। देन यूजिंग चेन रूल dy by dx is equal to dy by dt multiplied by dt by dx, or I can write that is dy by dt. Now dt by dx, that is 1 by dx by dt. This is dy by dx. So this is the second way, this is the second process of obtaining dy by dx. Okay dear? So कैसे हम, जब हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म होगी, जब हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन होगी, तो हम कैसे उस टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, कैसे हम dy by dx निकाल सकते हैं? उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। देयर आर टू वेज। एक तो ये है कि हम वेरिएबल x और y के दरमियान एक रिलेशनशिप डिटरमाइन करेंगे बाय एलिमिनेटिंग द पैरामीटर t, यानी पैरामीटर t को हम एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद x और y के दरमियान रिलेशनशिप निकालेंगे एंड देन वी विल डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। एक प्रोसेस ये, एक वे ये है। दूसरी वे ये है कि हम इस फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t और dx by dt निकालेंगे, यहां पे भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t और dy by dt निकालेंगे, फिर चेन रूल अप्लाई करेंगे टू ऑब्टेन dy by dx। dy by dx is equal to dy by dt multiplied by dt by dx, and we can simply say dy by dx is equal to dy by dt divided by dx by dt, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है dx by dt it is equal to 1 by dt by dx, ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया है। ये दूसरा वे है, जो दूसरी प्रोसेस है, ये हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब हमारे पास ये डिफिकल्ट होगा पैरामीटर t को एलिमिनेट करना। जब हम पैरामीटर t को एलिमिनेट कर सकते हैं कॉन्वेंटली, आसानी के साथ, तो उस टाइम हम सीधे डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन जब ये हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स होगा पैरामीटर t को एलिमिनेट करना, उस टाइम हम क्या करेंगे? उस टाइम हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, dy by dx it is equal to dy by dt divided by dx by dt। ओके डियर, अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म में। ओके, अब हम एक एग्जांपल देखेंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे इस पे पैरामीट्रिक फॉर्म में। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, if x is equal to at square, 2at square and y equal to at power 4, ये है पैरामीट्रिक फॉर्म। यहां पे x और y दे आर इन पैरामीट्रिक फॉर्म। x equal to 2at square and y equal to a times t power 4। तो हमें क्या करना है? you have to find dy by dx, हमें dy by dx निकालना। तो हमारे पास दो वेज पता है, दो तरीके में पता है कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, उनमें से एक लेंगे। हम यहां पे पहले x यहां पे फंक्शन है t की, सो वी डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू t। नेम दिस फर्स्ट, नेम दिस सेकंड। डिफरेंशिएट फर्स्ट with respect to t, you will get dx by dt, okay, that's equal to twice a t square की differentiation, that's 2t, so that is equal to 4at। तो हमारा dx by dt it is equal to 4at। इसी तरह यहां पे differentiate both sides of second with respect to t, you will get dy by dt it is equal to a times t power 4 की differentiation, that's 4 times t power 3, okay, and that is simply equal to 4at। okay जिगर, उसके बाद हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। okay, हमें क्या निकालना है? dy by dx that's equal to dy by dt divided by dx by dt। okay dear,
Now dy by dt, it is equal to 4at cube divided by dx by dt, it is equal to 4at. So this gives dy by dx is equal to, now 4a cancel, t and t cancel, this is equal to t square. So our dy by dx, it is equal to t square. Okay कीजिएगा, note कीजिए. Let's take another example. एक और एग्जाम्पल हम लेंगे यहां पे. एग्जाम्पल नंबर 2, x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a sin inverse t, y equal to under root of a cos inverse t. एक और एग्जाम्पल यहां पे, x equal to under root of a sin inverse t, y equal to under root of a cos inverse t. Okay, हमें क्या करना है? We have to find dy by dx. इस एग्जाम्पल में भी हमको क्या करना है? You have to find dy by dx. तो what we will do first, we will differentiate both sides of first with respect to t. With respect to t हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? इट इज dx by dt इक्वल, नाउ हमें ऑलरेडी जब हमने स्टैंडर्ड फंक्शंस की ab initio मेथड के जरिए डिफरेंशिएशन देखी, तो हमने वहां पे देखा कि जो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट फंक्शन होती है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 by twice रूट ऑफ फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन. मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया है दैट डिफरेंशिएशन ऑफ रूट फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, differentiation of root function, it is always equal to 1 by twice root of function into differentiation of function. तो यहां पे हमारे पास रूट फंक्शन है, उसकी डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगी? इट इज 1 by twice रूट ऑफ फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन a पावर साइन इनवर्स t की डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन a पावर साइन इनवर्स t की डिफरेंशिएशन. तो दिस इज इक्वल टू 1 by twice अंडर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ a पावर साइन इनवर्स t, a पावर f ऑफ x की डिफरेंशिएशन, a पावर फंक्शन की डिफरेंशिएशन, दैट इज a पावर फंक्शन into log a into differentiation of function sin inverse t की differentiation 1 by under root of 1 minus t square. So I can write this is 1 by 2. Now z divided by root z, it is root z. ये भी हमें ऑलरेडी पता है. z divided by root z, it is equal to root z. यहां पे z की जगह क्या है? a पावर साइन इनवर्स t डिवाइड बाय रूट ऑफ a पावर साइन इनवर्स t, सो इट इज इक्वल टू रूट ऑफ a साइन इनवर्स t मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर. और आई कैन राइट नाउ रूट ऑफ a साइन इनवर्स t, इट इज इक्वल टू x, सो हमारा आ जाएगा यहां पे x by 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर. ये निकला dx by dt, x by 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर. ओके डियर, बिल्कुल इसी तरीके से हम निकालेंगे क्या? dy by dt. यहां पे भी हम ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल यही प्रोसेस करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. तो हमारा क्या आ जाएगा यहां पे? dy by dt it is equal to root of function, that is 1 by twice root of function a cos inverse t into differentiation of a power cos inverse t, that is a power cos inverse t into log a into differentiation of cos inverse t, that is minus 1 by under root of 1 minus t square.
लास्ट लेक्चर में हमने देखा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स एक्स की क्या डिफरेंशिएशन है, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स की डिफरेंशिएशन है -1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की डिफरेंशिएशन में जो फर्क है वो सिर्फ साइन का है, एक में पॉजिटिव है तो दूसरे में नेगेटिव। ओके, तो यहां पे दिस इज dy बाय dt इज इक्वल टू नाउ z by root z, that is root z root a cos inverse of t divided by 2 into log a multiplied by -1 by under root of minus t square। यहां पे एक पॉइंट नोट कीजिए, यहां पे हम भूल गए, यहां पे है मल्टीप्लाइड बाय log a, तो यहां पे भी मल्टीप्लाइड बाय log a टू द बेस। ओके, तो ये बन जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू नाउ रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स टी, इट इज y, सो y बाई 2 इंटू लॉग ए मल्टीप्लाइड बाई -1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी। ये निकला dy बाई डी टी। अब हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो देखिए dy बाई डी एक्स यूज कीजिए फॉर्मूला। नाउ dy बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई dt। सो दिस इज इक्वल टू dy बाई डी टी y बाई 2 log a to the base e multiplied by -1 by under root of 1 minus t square whole divided by dx by dt x by 2 into log a into -1 by under root of 1 minus t square, sorry plus। now log a cancels, 1 by under root of 1 minus t square, 1 by under root of 1 minus t square cancels, so हमारा dy by dx it is equal to -y by x। so this is differentiation of y with respect to x in case of parametric form। okay जी, y by dx। यहां पे हम एक और वे भी कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कि हम जो पैरामीटर t है उसको हम एलिमिनेट करेंगे और x और y के दरमियान रिलेशनशिप निकालेंगे। जैसे यहां पे देखिए आप, हम क्या करेंगे, हम ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल उससे आसान हो जाएगा। पैरामीटर t को हम एलिमिनेट करेंगे। कैसे हम पैरामीटर t को एलिमिनेट करेंगे, हम जो ये फर्स्ट यहाँ पे इक्वेशन है और जो यहाँ पे सेकंड है इनको मल्टीपल करेंगे, यानी एक्स वाई निकालेंगे, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स टी। ओके, उसके बाद ये बन जाएगा एक्स वाई इज इक्वल, नाउ दिस इज रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी, bases are same, powers are added, plus cos inverse of t। okay जी फिर now inverse trigonometry में हमारे पास एक रूल है, sin inverse of x plus cos inverse of x it is equal to pi by 2। तो यही रूल हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये बन जाएगा xy is equal to under root of a power pi by 2। So carrying both sides you will get x square y square is equal to a power pi by 2। बिल्कुल आसान, सिंपल हो गई फंक्शन। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे x स्क्वायर को ऐसे ही y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2y dy by dx प्लस y स्क्वायर को ऐसे ही x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, that's 2x equal to a power pi by 2 constant, तो उसकी डिफरेंशिएशन 2 कैंसिल करेंगे थ्रू आउट, तो ये बन जाएगा ऐसे x स्क्वायर y dy by dx इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई स्क्वायर।
So dy by dx, it is equal to minus xy square divided by x square y, and that's simply equal to minus y by x. तो बिल्कुल इससे बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ऐसे भी हम कर सकते हैं डिफरेंशिएशन कि जो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है x और y की, जो ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, उसमें हम क्या करेंगे, पैरामीटर t को हम एलिमिनेट करेंगे और x और y के दरमियान एक रिलेशनशिप निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रिलेशनशिप निकली x और y के दरमियान। इस रिलेशनशिप, जो ये रिलेशनशिप है, इसमें जो x और y है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, यानी ये रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट है किसकी, t की। तो फिर उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा dy by dx। तो इस तरीके से हमारे पास जो पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं, यानी वो फंक्शंस हैं जो पैरामीट्रिक फॉर्म है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग पैरामीट्रिक फंक्शंस। ओके डियर, एक और लास्ट एग्जांपल हम लेंगे, तो उसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल। One more example, x equal to a theta minus sine theta, y equal to a 1 minus cos theta। यहां पे जो पैरामीटर है, दैट पैरामीटर इज थीटा, यानी x और y ये डिपेंडेंट है किस पे, वेरिएबल थीटा पे। ओके, हमें क्या ऑब्टेन करना है, वी हैव टू फाइंड dy by dx। Again, this is the parametric form. So हम क्या करेंगे, we will first find dx by d theta. Differentiate this with respect x with respect to theta. You will get dx by d theta. It's a times theta की differentiation with respect to theta, that is 1, minus sin theta की differentiation with respect to theta, that's cos theta. Okay. इसी तरीके से यहाँ पे differentiate with respect to theta, you will get dy by d theta is equal to a times, scalar है, multiple है, 1 की differentiation constant 0, और cos theta की differentiation with respect to theta, that is minus sin theta, as you already know। तो यहां पे क्या निकलेगा, dy by d theta, it is equal to a sin theta। okay dear, हमें क्या निकालना है, we have to find dy by dx। now using the formula dy by dx, it is dy by d theta divided by dx by d theta। now dy by d theta, it is a sin theta divided by dx by d theta, a into 1 minus cos theta। now a and a cancels, this is equal to sin theta, okay, sin 2 theta, sin 2 theta is twice sin theta cos theta। लास्ट लेक्चर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जब हम डिफरेंशिएशन करते थे, वहां पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नोट की। उन्हीं में से एक आइडेंटिटी थी sin 2 थीटा, sin 2x दैट्स इक्वल टू ट्वाइस sin x cos x। तो sin थीटा बन जाएगा ट्वाइस sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। इसी तरीके से वहां पे एक और आइडेंटिटी थी 1 minus cos 2 थीटा, दैट्स ट्वाइस sin स्क्वायर थीटा। तो 1 minus cos थीटा बन जाएगा ट्वाइस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये दो आइडेंटिटीज हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। यू विल गेट sin थीटा dy by dx is equal to sin थीटा twice sin थीटा by 2 cos थीटा by 2, 1 minus cos थीटा twice sin square theta by 2। so dy by dx is equal to, now 1 2 and 2 cancels, 1 sin and 1 sin, it is cos by sin, that's cot theta by 2। so this is our dy by dx। okay dear, so this completes one more interesting topic, that was differentiation of parametric functions or differentiation of a function in parametric form। inshallah in our next lecture we will take one more important topic from differentiation, that is differentiation of logarithm and exponential functions। Till then